keep them as pet animal. So if we talk about dog, cat, or parrot, all these are the names of pet animals. Now, any one of you tell me what is the difference between domestic animal and pet animal? Any one of you? We are talking about dog, cat, and parrot. These are the example of pet animals. Now, what is the difference between domesticated animal and pet animal? Anyone? डोमेस्टिक एनिमल जब हम लोग बोलते हैं तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ और पेट एनिमल का मतलब क्या हुआ? यस, इफ यू नो द आंसर टेल मी. Do you know, any one of you know the difference between domestic animal and pet animal? No one. Domestic animals, you know? Domestic animal किनको कहते हैं? पहले मुझे animals के बारे में बताओ. You all know about animal, wild animal, domestic animal, and here we are talking about pet animals. Now, what is the difference between all these animals? Yes? Any one of you? Let me see who can answer. Yes, tell me, Rishiraj. Any one of you? Yes, ma'am. Yes, answer it. Ma'am, domestic animal, those animal which are Yes. See, any one of you? Himanshu Sekhar. Yes, ma'am. Yes, answer it. Ma'am, domestic animals are those animals which live with us. Pet animal are those animals which we make us friends. Okay. See, he answered the question. Then anyone else who can answer? और कोई जो आंसर दे इसका? Domestic animal and pet animal, what is the difference between these two? Now see, whenever we are talking about, first of all, we will talk about wild animals. Wild animals, these are those animals which live in the forest and they cannot be domesticated. Means we cannot keep them in our home. Okay, they live in the forest and it is not easy to keep them with us. Okay, because they are very much dangerous for human. So that is regarding the wild animal. If we are talking about the domesticated animal, the animals which are kept by the human for different purpose to fulfill the different needs, we domesticate the animal. Like if we want to obtain milk, we keep cow. Okay, cow give us milk. If we want if we want to guard our house, okay, then dog will play important role in but pet animal is quite different from domesticated animal. डोमेस्टिक एनिमल की अगर बात करें तो इसमें काऊ, बफेलो, हॉर्स सबको हम लोग रख सकते हैं. ठीक है, काऊ, बफेलो, हॉर्स ये सब जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, गोट. ओके, लेकिन पेट एनिमल की अगर बात करें तो पेट एनिमल्स विच वी कीप एज अ पेट, they are generally smaller animals and as he said, we can keep them as our friend. पेट एनिमल्स उनको कहते हैं जिनको हम लोग जो है अपने साथ जहां जहां जाते हैं वहां लेके जा सकते हैं और उनको जो है हम लोग अपने साथ रख सकते हैं. अब ऐसा तो नहीं कि एक रूम में रहोगे तो उसमें काऊ को भी रख लोगे, ऐसा तो नहीं होता है. तो काऊ क्या है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल है. लेकिन अगर पेट एनिमल है, छोटी सी कैट है या डॉग है, तो उसको हम लोग एज अ पेट एनिमल अपने साथ रखते हैं. ठीक है, this is the difference between pet animal and domesticated animal. Many animal products are there which we people are consuming daily. बहुत सारे एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे चीज, हनी, एग, मीट, फूड, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से. सो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल. नाउ
Horses, oxen are used as draught animal. Now, what is the meaning of draught? Who can tell me? जो हॉर्स और ऑक्सन है उसको एज अ ड्रॉट एनिमल हम लोग यूज करते हैं. ड्रॉट का मतलब क्या हुआ? द एनिमल विच इज यूज फॉर लेबर पर्पस. जो काम करवाने के लिए जिन एनिमल्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो लेबर पर्पस के लिए जिस एनिमल को यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्रॉट एनिमल. ओके, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू ऑल? The animals which are kept for the purpose of labor, they are called draught animal. ऐसे animals को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं. तो हॉर्स हो गया, ऑक्सन हो गया, ये सब क्या है? ड्रॉट एनिमल्स है. हैव यू सीन अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट? देखे हो कभी हॉर्स को कार्ट को खींचते? बताओ मुझे. एनीवन ऑफ यू, एनीवन यू हैव सीन? किसी ने देखा है हॉर्स को गाड़ी खींचते हुए? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. That type of animal, that type of animal are known as draught animal. ऐसे animals को draught animal कहा जाता है. To draw wagon and carts, जो wagon और carts को खींचते हैं. And they are also used to assist the farmer in the field. और field में farmer को plowing में मदद करते हैं. हल चलाने में जानवरों का भी यूज किया जाता है. अब तो खैर ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है. ट्रैक्टर्स से ही खेती होती है, लेकिन बहुत स्मॉल प्लॉट्स में अभी भी जो है फार्मर्स जो है वो एनिमल्स का यूज करते हैं. देखे हो हल चलाते हुए जानवर को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these are the examples of how animals are useful for us. ये जो है हमको बताता है कि कैसे एनिमल्स जो है हम लोगों के लिए यूजफुल है. Now the following point further explain the usefulness of animal in our day-to-day life. अगर हम लोगों के रोजमर्रा के दिन हम लोग रोज के हिसाब से देखें, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखें, तो एनिमल्स जो है हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है. Silk and wool that are used for making cloth come from silkworm and sheep respectively. Do you wear silk clothes? We all wear silk clothes, na? Woolen clothes and silk clothes we people use often. Now, silk we obtain from the silkworm and wool we obtain from the sheep. तो हम लोग woolen things यूज करते हैं, वो किससे मिलता है? शिप से वो ऊल मिलता है हम लोगों को. और जो सिल्क हम लोग सिल्क के क्लोथ्स पहनते हैं, वो सिल्क कहाँ से आता है? सिल्कवॉर्म से आता है. ठीक है, तो सिल्क और ऊल ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है हम लोगों को किससे मिला? From whom we are getting? We are getting it from animals. Now leather obtained from skin of animal like goat, sheep and buffalo is used to make shoe, purses and bag. लेदर जो है वो किससे मिलता है? लेदर मतलब क्या होता है बताओ कोई? What is the meaning of leather? Do you know the meaning of leather? चमड़ी. हाँ, तो जो स्किन जो होता है एनिमल का, जो चमड़ी होता है, गोट हो गया, सीप हो गया या फिर बफेलो हो गया, उनके चमड़े से जो है शूज बनते हैं, पर्सेस और बैग्स बनते हैं जो हम लोग यूज करते हैं. पर्ल्स यूज्ड एज ज्वेलरी, जो पर्ल आता है जिसको हम लोग मोती कहते हैं, वो जो है ऑयस्टर से मिलता है हम लोग. ठीक है, जो ज्वेलरी के पर्पस से यूज होता है. ज्वेलरी जानते हो ना? आभूषण जिसको कहते हैं, तो आभूषण को बनाने में, ज्वेलरी को बनाने में पर्ल्स का यूज किया जाता है. और वो पर्ल कहाँ से आता है? ऑयस्टर से. Now many type of fish, prawn, lobster, crab are used as seafood. बहुत सारे लोग सी फूड्स को खाते हैं और क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन ये सब लोग जो है सी फूड के तौर पर खाते हैं. Animal like horse, camel, elephant are used as means of transport. सामान ढोने के लिए, means of transport के लिए camel, elephant या फिर horses को यूज करते हैं लोग. In ancient time, king had dog that used to assist them in hunting in the forest. पुराने समय में राजाओं के साथ डॉग्स रहते थे और ये डॉग उनको शिकार करने में मदद करते थे. At present, dog assist police in various search operation. आजकल अगर देखा जाए तो विभिन्न तरह के सर्च ऑपरेशन में ये जो या पुलिस को असिस्ट करने में डॉग का यूज किया जाता है. वो आइडेंटिफाई करता है स्मेल को, ठीक है, और क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है.
Is it clear to you all? See how animals are divided, that is given. Yes, ma'am. Now next, Yes, ma'am. animal waste like cow dung is converted to compost. यही नहीं, जो एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि काउ से हम लोगों को काउ डंग मिलता है जिसको कि गोबर कहते हैं, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर कंपोस्ट, उससे खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट मेक सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो कंपोस्ट है वो सॉइल को क्या बना देगा, मिट्टी को क्या बना देगा, उपजाऊ बना देगा, ताकि अच्छे से खेती की जा सके। From that animal which give us an useful product which is used for making jewelry. It is a kind of, yes, it is an example of animal which give us a Ma'am, oyster. yes, very good. Oyster is the name of animal, Ma'am, and we are getting pearl from elephant. yes, and we are getting pearl from the Ma'am, oyster. elephant. Okay, now tell me the name of two seafoods, example of two seafoods. Any two seafoods? Ma'am, prawns, crab, and fish and lobster. Very good. Lobster, prawn, and crab. These are the examples of seafood. Very good. Yes. Now, next we are moving on to the topic wildlife. A very interesting topic, wildlife. You people, I think, will feel very much excited to know about the wild animals. We people always in, uh, what we people do, we people have query to know about the wild animals. हमेशा हम लोगों की चाहत होती है ना कि ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जाने, ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वाइल्ड एनिमल इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लीव एंड ग्रो इन द नेचुरल सराउंडिंग। नेचुरल सराउंडिंग में यानी प्राकृतिक रूप से जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सबको हम लोग क्या कह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर, हर जगह हमको वाइल्ड लाइफ मिलेंगे। कहाँ कहाँ? इन प्लेन्स, जो मैदानी हिस्से हैं वहां, रिवर्स नदियों में, माउंटेन्स पहाड़ों में, एंड सीज समुद्र में, रेन फॉरेस्ट जहां, रेन फॉरेस्ट वैसे जगहों पे होती है जहां बारिश अधिक होती है, एंड डेजर्ट्स जहां रेगिस्तान है। तो हर जगहों पे हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। Today there are very few places left on earth where wildlife is totally untouched by human being. अगर आज की बात करें तो पूरे दुनिया में बहुत कम ऐसे जगह रह गए हैं जहां का वाइल्ड लाइफ जो है ह्यूमन के टच से बाहर है, यानी हर जगह जो है इंसान जो है उन लोगों के टच में है, ठीक है, यानी हर जगह इंसान पहुंच चुका है। कुछ ही ऐसे जगह बचे हैं जहां अभी तक इंसानों की या ह्यूमंस की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन अनटच्ड है? तो जहां ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी वहां वाइल्ड लाइफ अच्छा होगा, या वहां का वाइल्ड लाइफ जो है सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, ये तुम लोग बताओगे मुझे, बताओ। अगर हम कह रहे हैं कि टुडे देयर आर वेरी प्लेसेस लेफ्ट, yes, today there are very few places left on the earth where wildlife is totally untouched by human, जहां ह्यूमन ने इंटरफेयर नहीं किया, और वहां जो है वाइल्ड लाइफ अनटच्ड है। बहुत कम ऐसे जगह रह गया है दुनिया में, तो जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा वहां क्या होगा? टेल मी what we people are doing. वहाँ का वाइल्ड सेफ रहेगा। Yes, very good, very good, that what we want, I want to know. जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम होगा वो जगह ज्यादा सुरक्षित होगा। मीन्स बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन, जब ह्यूमन धरती पर आया भी मतलब उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उस समय से वाइल्ड लाइफ जो है अर्थ पे मौजूद है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ को भी अर्थ पे रहने का क्या है, हक है, ठीक है। And however we the human are destroying the natural surrounding of the animal by cutting down forest and polluting river. अभी मैंने कहा था कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा तो ह्यूमन क्या करेगा, पेड़ों की कटाई करेगा, या जो रिवर्स हैं उनको पोल्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी है यानी डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल, that is going to harm them. Now due to this many wild animals are not able to live in the
change surrounding and are increasingly becoming extinct. अब जब सराउंडिंग ही चेंज हो जाएगा तो वाइल्ड एनिमल्स अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंस, हाउ ह्यूमन इज इंटरफियरिंग, दे आर कटिंग द फॉरेस्ट, दे आर पोल्यूटिंग द रिवर। सो इफ रिवर इज पोल्यूटेड, फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, वाइल्ड लाइफ थ्रेट कहते हैं। नाउ एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट के पास क्या होता है, टस्क होता है। टस्क जानते हो? Do you know the tusk? Do you know tusk? Yes. टस्क जो है वो क्या है, एनिमल्स टस्क और आइवरी एज इट इज कॉमनली नोन आर यूज्ड फॉर ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। ये जो टस्क है एनिमल का, जो हाथी का जो दांत होता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेकोरेशन पीसेस, तरह तरह के डेकोरेशन के आइटम्स को बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो दैट्स वाई एलिफेंट आर हंटेड, और इसीलिए एलिफेंट्स का शिकार होता है। तो शिकार होता है किस चीज के लिए, एलिफेंट्स का? व्हाई एलिफेंट्स आर हंटेड? Ma'am, for their tusk and I. Yes, for their tusk के लिए एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। Now North and South American bear are also being killed for their gallbladder. बियर्स हैं उनको इसलिए मार दिया जाता है, उनके गाल ब्लैडर्स के लिए उनको मार दिया जाता है। ठीक है, एंड विच आर स्मगल्ड टू अदर कंट्री एंड यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। वो जो है दूसरे कंट्री में स्मगलिंग होता है और